So in today's class, we are going to understand about triangles, and specifically in the triangles, we will study about the concurrent triangles. So what are concurrent triangles and what are the features related to the concurrent triangles? We are going to understand in that and then how we can go for the concurrency. What are the things that we have to do in the concurrency that we will try to understand. तो यहाँ पे हम लोग कॉन्करेंसी के बारे में समझेंगे. तो कॉन्करेंट ट्रायंगल्स के बारे में समझने से पहले कुछ बेसिक सा इंफॉर्मेशन जो ट्रायंगल्स के बारे में तुम लोगों को जानने की जरूरत है. When we do use to see for the triangles, then we do use to observe that in a triangle we do have the three sides and there are three vertices. So तीन साइड या तीन vertices वहां पर होती हैं और जब ये एक क्लोज फिगर है, कभी भी जब भी कोई ट्रायंगल का फॉर्मेशन होता है तो वो एक क्लोज फिगर होता है which used to form by the combination of three line segments और three rays. तो अगर कोई तीन रे या लाइन सेगमेंट एक दूसरे को कहीं पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं या फिर कहीं पर वो लोग आपस में आकर मीट कर रहे हैं, सो दैट इज फॉर्मिंग टू द ट्रायंगल. और इस ट्रायंगल में कई सारे अलग अलग चीजों को जानने की जरूरत है, जैसे कि फॉर एग्जांपल इसके इंटरनल एंगल्स के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं. सो इंटरनली यहाँ पर तीन एंगल्स होती हैं इसमें. देयर आर थ्री एंगल्स विच आर इंटरनल एंगल्स. और अगर इसके किसी साइड को अगर हम प्रोड्यूस करते हैं, अगर इसके किसी भी साइड को अगर हम यहाँ पे प्रोड्यूस कर देते हैं तो हमको बाहर एक एंगल मिलेगी विच इज कॉल्ड टू बी एज द एक्सटीरियर एंगल. So interior angles are the angles which we do use to see inside the figure, and the exterior angle is the angle which we do use to see at the outside of the figure. Else than this, whenever we do use to go for the classification of the triangles, then there are some of the basic conditions that on which we do use to go for the classification. That is on the basis of sides and on the basis of angles. तो आइदर एंगल साइड के बेसिस पर या एंगल्स के बेसिस पर हम लोग ट्रायंगल्स को अलग अलग क्लासेस में या अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं. जैसे कि अगर हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ साइड अगर देखते हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ साइड में हम लोग इसको तीन अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं. सो दैट द फर्स्ट वन इज द इक्विलेटरल ट्रायंगल. So an equilateral triangle is a kind of triangle, equilateral triangle, a kind of triangle where we do use to observe that all the three sides are equal. यहाँ पर जो तीनों साइड होती हैं, ये तीनों साइड आपस में इक्वल होती है. So that is called to be as an equilateral triangle. Then we do use to observe for the second kind of triangle where we do use to observe that any two of the side of the triangle is equal to each other. So that is called to be an isosceles triangle. So suppose these two sides are equal to each other, then that would be called to be as the isosceles triangle. So this is one of the kind of the triangle where we do use to see that only two sides are equal. And there the third kind of triangle where do we see that no any side will be equal to each other. अगर मेरे पास कोई भी साइड जो है वो आपस में इक्वल नहीं होती हैं, so that kind of triangle is called to be as a scalene triangle. तो वहां पर हम लोग उसको क्या कहते हैं, scalene triangle. So equilateral triangle is a kind of triangle where we do use to see that all the three sides are equal. Hence we do also observe that there all the angles are also equals to 60 degree, specifically 60 degree. And when we do use to see for an isosceles triangle, then it's any of the two sides will be equal, and the sides which are equal with that the angles which are forming, or the along the side the angles which are forming, they are called to be the base angles. यानी जिन इक्वल साइड्स के साथ जो एंगल्स वहां पर होती हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, बेस एंगल कहते हैं. और जो नॉन इक्वल एंगल होती है उसको हम लोग वर्टेक्स एंगल कहते हैं. So that is also need to remember over here. And there is no any particular measurement of these two equal values. That can be any accurate angle. Now, when we go for the scalene triangle, so in the scalene triangle, we do use to observe that as no any side are equal. Hence, we do use to observe that all the three angles are also different from each other. This is on the basis of sides. But if we go for on the basis of angles, then also we can classify them into three categories. Angles के basis पर भी हम लोग उनको तीन category में divide कर सकते हैं. First as acute angled triangle. अगर हम लोग देखते हैं तो acute angled triangle. So acute angled triangle means all the angles which that triangle will have,
that will be some acute angle. कोई भी acute angle हो सकता है जो यहाँ पर form होती है. I hope everyone remember acute angles are those angles which forms or whose values is between 0 to 90 degree. तो इसको कहते हैं हम लोग acute angle triangle. इसी तरह से एक और कंडीशन हम लोग देख सकते हैं ट्रायंगल का ऑन द बेसिस ऑफ द एंगल, दैट इज कॉल्ड टू बी एज अ राइट एंगल ट्रायंगल. राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब हो गया एक ऐसा ट्रायंगल जहां पर कि एक एंगल, कोई एक एंगल जो होगी वो 90 डिग्री की होगी एंड अदर टू एंगल्स विल बी सम एक्यूट एंगल. तो ये दोनों कोई एक्यूट एंगल होंगे और एक जो है वो 90 डिग्री की होनी कंपलसरी है. And the third kind of this triangle is going to be as an obtuse angle triangle. So obtuse angle triangle, as its name is referring, so there must be an obtuse angle. So one of the angle over there, that will be obtuse angle. So one of the angle which is going to be there, it is going to be greater than 90 degree. So something more than 90 degree it can be. And other two angles would be some acute angles. So इस तरह से हम लोग एंगल्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं या ट्रायंगल्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स एज वेल एज ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइड्स. इसके अलावा अगर हम लोग देखते हैं तो ट्रायंगल्स में कुछ और भी चीजें होती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोगों को जानने की जरूरत होती है एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल. क्योंकि जब ट्रायंगल के बारे में हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोगों को ये समझने की जरूरत होती है कि उसके एरिया को भी कैलकुलेट करना होता है. तो अगर हम लोग एल्टीट्यूड के बारे में बात करते हैं, सो एल्टीट्यूड इज द परपेंडिकुलर लाइन विच यूज्ड टू बी ड्रॉन ऑन द बेस ओवर देयर. तो अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं, जैसे ये एक साइड है, एक एक पॉइंट है, और वहां से अगर हम एक एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, जैसे कि सपोज इफ आई नेम दिस ट्रायंगल फर्स्ट, say as this is A, this is B, this is C, and this is D. So over here AD is perpendicular on BC, so then that will become as to the altitude. तो वहां पर वो क्या बन जाएगा, altitude बन जाएगा. Similarly, it is not necessary that there would be only one altitude. There can be more than one altitude also. Suppose for example, if I draw a line from here which is going to be perpendicular, which has to be perpendicular, then only we can say that it is an altitude. So over here, if this is there, so if I put it as E, so over here BE is perpendicular on AC, so then that is also going to be the altitude. In the same way, if you go for the third component, if you go for the third side, so there is a possibility to draw a perpendicular over here also. Okay, so at this point we do have a perpendicular. So over here it is going to be as CF. CF is going to be perpendicular on AB. So this is also going to be one of the altitudes. So altitudes are those lines which used to be drawn perpendicularly on any of the side of the triangle from the vertices. Okay, or from the angles, and the point where these three lines are intersecting, that point is very important, which is called to be as the orthocenter. यहाँ पे एक टर्म है, याद रखना है इसको, ये टर्म याद रखना है. सो दैट इज कॉल्ड टू बी एज ऑर्थोसेंटर. इसको क्या कहते हैं, ऑर्थोसेंटर कहते हैं. ऑर्थोसेंटर इज अ पॉइंट और अ पर्टिकुलर value which we do use to observe when all the altitudes used to intersect each other. So एक ऐसी जगह जहां पर सारे altitude आकर आपस में merge करते हैं या सारे altitudes आपस में आकर जुड़ते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्थोसेंटर कहते हैं. In the same way, there is one more thing which we need to understand under the condition of a triangle, that there can be a median. जैसे कि हम लोगों ने बात किया अभी altitude के बारे में, ठीक उसी तरह से हम लोग मीडियन के बारे में भी बात कर सकते हैं. तो मीडियन क्या होता है, मीडियन बेसिकली जैसे नाम से ही पता चल रहा है, इट इज अ मिड वैल्यू. सो जब हम लोग किसी भी साइड के ऊपर एक मीडियन ड्रॉ करते हैं, इट इज the midpoint of that particular side. So suppose for example, this is the triangle which we are talking about, and in that one over here, this is, suppose this is A, this is B, this is C. Now in this one, if I go for it, suppose for example if I go for the median over here, तो यहाँ पे perpendicular होने की जरूरत नहीं है, हमको बस median चाहिए. तो मीडियन का मतलब क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर साइड को बाइसेक्ट करने वाली है. सो दिस इज गोइंग टू बाइसेक्ट ओवर हियर. सो दिस BD विल बी इक्वल्स टू दिस CD. इन द सेम वे यू कैन गो फॉर अनदर मीडियन टू द अदर साइड. तो यहाँ पर अगर हम दूसरा मीडियन लेते हैं, यहाँ पर ये वाला आ जाएगा, तो यहाँ पर भी ये इस पोर्शन और इस पोर्शन को इक्वली डिवाइड कर रहा है.
सिमिलरली हम लोग एक और मीडियन ले सकते हैं फॉर द थर्ड साइड, वो यहां से इसके साथ आ सकती है, तो ये इक्वली डिवाइड कर रहा है, सो दिस पोर्शन एंड दिस पोर्शन इज अगेन इक्वल, तो ये मीडियन हो जाती है। तो मीडियन कैन बी ड्रॉन ऑन द अदर साइड एंड इट विल बी डिवाइडिंग द साइड इनटू टू इक्वल पोर्शंस। एंड इस मीडियम में दो लॉजिक है जो हम लोग को याद रखने की जरूरत है, बिकॉज दीज लॉजिक्स वी आर गोइंग टू यूज व्हाइल वी विल सॉल्व फॉर द क्वेश्चंस। सो क्या वो दोनों लॉजिक हैं? सबसे पहला लॉजिक अगर हम देखते हैं, जैसे सपोज फॉर एग्जांपल नेमिंग कर लें ए बी सी डी, यहाँ पर हम ई कर लेते हैं, यहाँ पर हम एफ कर लेते हैं, द पॉइंट वेयर इट इज मीटिंग से एज ई एफ जी, सपोज हम यहाँ पे जी कर लेते हैं। Okay, so the first thing which you need to remember that the ratio of AG to DG, it is going to be 2:1. It is going to be 2:1. ठीक है, ये 2:1 होगा। In the similar way, it is not only for AG, it can be for CG with FG, that is also going to be 2:1. In the same way, if I go for BG along with EG, that is also going to be 2:1. So this is one of the property which we need to remember, which used to be helpful for us. And as we know for this one as the ortho center, इसको हम क्या बोले थे? इसको हम बोले थे ortho center। एंड इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे? इस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड। ठीक है, तो ये होती है। तो इन पॉइंट्स को याद रखने की जरूरत है। सो इफ यू विल रिमेंबर देन इट विल बी वेरी वेरी इजी फॉर यू टू सॉल्व द क्वेश्चंस व्हिच यू आर गोइंग टू एक्सपीरियंस ओवर हियर। So this was just the introduction of some of the components regarding to the triangle. Now we are going to understand about the basic topic of our chapter, that is the concurrency or the congruent triangles. तो हम लोग चलो समझते हैं congruent triangles या concurrency में क्या करना है। देखो, जब हम लोग बात करते हैं फॉर द कंडीशन ऑफ कॉन्ग्रुएंस के लिए, so congruence is a condition or a situation where it's mean to be same। इसका मतलब क्या हो जाता है? सेम, वो एक जैसा होना है। ठीक है, तो most probably you all had seen at your home or somewhere kids used to play a game। छोटे बच्चों की गेम होती है जहां पर कि कुछ फिगर्स रखी हुई होती हैं अलग अलग शेप एंड साइज की, और एक बोर्ड होता है, और ये बोला जाता है कि उस पर्टिकुलर शेप को उसमें जाकर फिट करना है। तो जो फिगर जिस साइज का है या जिस शेप का है उसको वहां पर हम लोग फिट करते हैं, जिस भी जगह पर उसकी प्लॉटिंग होनी है। तो यहां पर जब हम लोग कॉन्करेंसी कर रहे हैं तो हम लोगों को इसी चीज को समझने की जरूरत है। जब हम लोग कॉन्करेंट फिगर्स के बारे में बात करते हैं तो इट मींस कि हम लोग बात कर रहे हैं सेम तरह के फिगर्स की। जब हम कहते हैं सेम तरह के फिगर्स की, सो व्हाट डू वी मीन बाय दैट? We actually mean by that the figures are equal in the dimensions। तो फिगर की जो डायमेंशंस होंगी वो आपस में इक्वल होंगी। So we can fit one figure on another figure। And here in this class you are going for congruency of the triangles। So it is not necessary that it will be only for the triangles। It can be for circle, it can be go for any kind of quadrilateral, it can be go for any other thing, any kind of regular figures, whatever kind of regular figures we do use to have, whatever kind of regular figures which we do use in our day-to-day life, so for those kind of figures we can go for concurrent। So concurrent means two given figures or any set of figures which are equal in dimensions। Right now we are going for the triangles, we are going for the congruency, see for the triangles। Hence we will talk about three angles as well as three sides। तो हम लोग यहाँ पर ट्रायंगल के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए तीन एंगल और तीन साइड के लिए यहाँ पर डिस्कस करेंगे। Now, before I go for the explanation for the more in this chapter, one of the thing which I want to mention for this, that while you are going for this chapter, it is very very important for you all to build up the imagination power। तुमको imagination power बढ़ानी पड़ेगी। If you are not able to imagine, if you are not able to identify the figure by rotating in your mind, by just assuming that which side and which angles has to be rotated, you will not be able to solve this chapter। It's a very simple one।
But if you will, if you are able to do so, if you are able to recognize the figure, if you are able to recognize that from which side I have to turn the figure or flip the figure or lift the figure, then it will be much easy for you to solve it over here. तो यहां पर जैसे कि सपोज फॉर एग्जांपल मान लेते हैं हम ये क्या कहना चाह रहे हैं यहां पर, सपोज मेरे पास इधर एक ट्राइंगल दी हुई है, ठीक है, और उसी के सामने हमको एक दूसरा ट्रायंगल भी दिया हुआ है, ठीक है. सो बोथ डू हैव डिफरेंट नेम्स ओवर देयर. सो से एज दिस फर्स्ट वन इज ए बी सी, द सेकंड वन इज पी क्यू एंड आर. Now suppose over here, if it has been mentioned, I'm saying if it has been given to you that AB is equals to PQ, BC is equals to QR and AC is equals to PR. ठीक है, अगर मान लो तुम लोगों को इस तरह की कोई क्वांटिटी दी हुई है जहां पर बोला गया है कि AB जो है वो PQ के इक्वल है, BC जो है वो QR के इक्वल है, और साथ ही साथ जो AC है वो हमारे PR के इक्वल है. So in this condition, what you can do? You can say that I can lift this figure and place it over here. हम इस फिगर को उठाकर यहां पे प्लेस कर सकते हैं. Is it or not? And it is going to fit over here correctly. ये तो यहां पे करेक्टली आ गया ना, जो साइड जिसके ऊपर आना था वो वहां पर उसके ऊपर आ रहा है. So then that is called to be as a congruent figures. यहां पे जब ये दोनों फिगर आपस में इक्वल बन जाते हैं, जब ये यहां पर इक्वल कंडीशन में बन जाते हैं, ये एक दूसरे के ऊपर फिट बैठ सकते हैं, तो इसको हम लोग कह सकेंगे congruent figures. So these are congruent figures. So see, depending on the condition, if it would not be like this, then I had to just turn it, flip it, or something I have to do it to make it as equal. तो यहां पर अगर हम लोग देखते हैं तो इस फिगर को इस फिगर पर हम लोग इक्वल बैठा पा रहे हैं. सो ये इसीलिए बैठा पा रहे हैं क्योंकि हम लोगों को साइड्स इक्वल दी हुई है. तो देखो यहाँ पे जो साइड्स इक्वल दी हुई हैं वो यहाँ पर एग्जैक्टली इसको फिट कर रही है. So this is only concurrence. This is only the concurrent things which we have to understand. तो यहां पर जैसे कि ये तीनों साइड आपस में इक्वल हो गए, तो इसी से हम लोगों का पहला क्राइटेरिया कंप्लीट हो जाता है, जहां पर हम लोग देखते हैं एस एस एस. अभी बता रहे थे कॉन्करेंट फिगर्स यानी कॉन्करेंसी करनी है, हमको दो फिगर्स को इक्वल करना है. तो जब हम दो फिगर्स को इक्वल करेंगे तो किन पैटर्न्स पर करेंगे, किन 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 लॉजिक्स पर करेंगे, कौन से ऐसे प्रिंसिपल होंगे या कौन से ऐसे कंपोनेंट्स होंगे जिसके बेसिस पर हम लोग ये कर सकते हैं. सो फॉर दैट वन वी डू यूज टू ऑब्जर्व दैट इट हैज टू बी एज सम ऑफ द रूल्स. सो ये हो गया पहला रूल जहां पर हम लोग डिस्कस करते हैं एस एस एस. अगर कोई दो गिवन ट्रायंगल्स के तीनों साइड्स आपस में इक्वल होते हैं तब हम वहां पर उन दोनों ट्रायंगल्स को इक्वल कह सकते हैं या कॉन्कोरेंट कह सकते हैं. और जब वो कॉन्करेंट हो जाते हैं तो जो बाकी बची हुई तीन क्राइटेरियाज हैं, देखो जब भी किसी भी दो ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे देन वी विल टॉक अबाउट थ्री साइड्स एंड थ्री एंगल्स. सो अगर ये तीनों साइड्स आपस में इक्वल हो गई हैं देन ऑब्वियसली जो बाकी जो तीनों एंगल्स होंगी, जो उस ट्रायंगल में जो तीनों एंगल्स होंगी, दे विल बी आल्सो इक्वल ओवर देयर. वो भी वहां पर बराबर ही होंगी जैसे कि ये साइड्स आपस में इक्वल है. So this is the first criteria which we had done over here, that is side side side. ये यहां पर हो गया. चलो इसके बाद चले आते हैं हम लोग एक दूसरे कंडीशन में जहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक दूसरे प्रॉपर्टी को, और वो प्रॉपर्टी क्या होने वाली है, लेट्स सी एंड अंडरस्टैंड ओवर हियर. यहां पर हम लोग एक और कंडीशन देखेंगे जहां पर अगर सपोज मान लो हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में कि एंगल बी एंड एंगल क्यू इज इक्वल. ओके, एंगल सॉरी साइड BC इज इक्वल्स टू PQ. हमको गिवन दिया हुआ है कि BC इज इक्वल्स टू PQ एंड AB इज इक्वल्स टू QR. ओके, सो हमको ये गिवन में है, मेरे पास ये गिवन कंडीशन के बेसिस पर है कि AB इज इक्वल्स टू QR, then angle ABC is equals to angle PQR, and the side BC is equals to PQ. तो यहां पर ये तीनों आपस में इक्वल हो जा रहे हैं.
तो अगर ये तीनों इक्वल हो जाते हैं तो भी मेरा एक क्राइटेरिया यहां पर कंप्लीट हो जाता है. सो दैट इज व्हाट, दैट इज साइड एंगल साइड. So this is also one of the criteria on which we can make two triangles congruent to each other. तो यहां पर अगर हम लोग बोलते हैं तो यहां पर इसको सीधे सीधे तो हम लोग बैठा नहीं सकते हैं. हम लोग यहाँ पर इस फिगर को क्या सीधे सीधे इस पी क्यू आर पे सेट कर सकते हैं क्या? वो नहीं हो पाएगा. क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि यहाँ पे साइड्स जो है वो मैच नहीं कर रहे हैं. सो व्हाट आई हैव टू डू, आई विल जस्ट स्विच इट आउट. ठीक है, अगर हम यहाँ पर स्विच करेंगे तो कैसे करेंगे? तो इधर इसको हम ऐसे करेंगे, इसको कुछ हम ऐसे करेंगे और फिर हम यहाँ पर इसको देखेंगे. So if I'm just able to turn it, अगर इसको थोड़ा सा टर्न कर पाते, so I'm not able to turn this one. Okay, ये टर्न नहीं हो रही है. So if it had been turned, then it would be easy. Okay, no problem. I'm just leaving it as it is. तो हम यहाँ पर एक और फिगर नेक्स्ट ड्रॉ कर लेते हैं जिसके बेसिस पर तुम आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये कैसे पोजीशन बन सकती है. तो अगर हम लोग इसको लेते हैं तो अगर हम इसके इक्वल में लेकर आएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाने वाला है? सो ए बी इज गोइंग टू लाई ओवर हियर. ए बी यहाँ पर ले डाउन करने वाली है और the BC is going to lay down over here. BC यहाँ पे lay down करने वाली है and AC will remain as it is. AC जो है वो अपनी जगह पर as it is वहीं पे रहेगा. So over here if we do used to see that this is B, it is going to be our B. Over here it is going to be our A and over here it is going to be our C. So अगर इस तरह से देखते हैं तो ये दोनों triangles आपस में congruent हो जाते हैं because this angle and this angle is equal. This side is equals to this side and this side is equals to this side. तो हमको ये imagine करना है, हमको identify करना है कि किस triangle के बीच में ये हो रही है और किन triangles को हमको यहाँ पर flip करने की जरूरत हो सकती है, हमको यहाँ पर turn करने की जरूरत हो सकती है, हमको यहाँ पर थोड़ा सा अपलिफ्ट करने की जरूरत हो सकती है. डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन वहां पर हम देखेंगे कि दोनों जो गिवन ट्रायंगल्स है उन दोनों ट्रायंगल्स को कैसे इक्वलाइज कर सकते हैं. So this is also one of the criteria on which we can make two triangles as congruent. So the first one we had done for SSS and the second one we had done for SAS. Just now I'm just telling the rules and then later on I will also explain that how we have to write it. What is the writing procedure? That also we are going to discuss. Okay. Now let's move to the next condition or the next method by which we can make two given triangles as the congruent triangles. तो यहाँ पर अब हम लोग next condition में जाने वाले हैं. जो next condition हम लोग यहाँ पर discuss करने वाले हैं that is going to be angle side angle. Now students remember, in some places this condition also used to be referred as AAS. Okay, now this is, I will not say that this is a wrong way to write it, but I will suggest that you write for ASA. वैसे ये ऐसे भी लिखा जा सकता है लेकिन इस तरह से लिखेंगे तो वो ज्यादा बेटर होगी. अब एक लॉजिक है, angle sum property. I hope everyone remember this thing. Angle sum property, where we do used to study this thing, that the sum of all the angles in a given triangle used to be 180 degree. तो अगर मान लो कि मेरे पास कोई दो ट्रायंगल है और उसमें कोई दो एंगल इक्वल दिया हुआ है, देन ऑब्वियस सी बात है कि थर्ड एंगल भी इक्वल होगा ही होगा. ठीक है ना? वैसे अगर थर्ड एंगल भी इक्वल हो जाए तो ऐसा मतलब नहीं है कि हम ए से उसको इक्वल कर सकते हैं. इसके बेसिस पर इक्वल नहीं कहा जा सकता है. ए के बेसिस पर हम किसी दो ट्रायंगल को इक्वल नहीं कर सकते, कॉन्करेंट नहीं कर सकते. याद रखना है, हम जब ये कह रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि जब हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि एंगल बी सपोज एंगल क्यू के इक्वल है, एंगल सी एंगल आर के इक्वल है. ठीक है, और यहां पर हमको दिया हुआ है कि ये जो BC है, BC इज इक्वल्स टू PQ. ठीक है, सपोज हमको इस तरह से दिया हुआ है. तो यहाँ पर ध्यान से देखते हैं और इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर कैसे किस तरह से होने वाली है. देखो, हमको यहाँ पर गिवन में दिया हुआ है कि एंगल ABC इज इक्वल्स टू एंगल PQR.
फिर हमको ये भी दिया हुआ है कि एंगल ए सी बी इज इक्वल्स टू एंगल पी आर क्यू, ये दोनों एंगल। और साथ ही साथ हमको ये दिया हुआ है कि BC is equals to BC is going to be equals to which one, that is PQ, वो PQ के इक्वल है। तो अब हम इसको कैसे इसके साथ कॉन्कुरेंट कर सकते हैं? सो यू हैव टू थिंक इट इन दिस वे, तुमको इस तरह से इसको सोचना है कि अगर मेरा ये दोनों एंगल इक्वल है आपस में, देन ऑब्वियसली कि एंगल A will be equals to एंगल P because of the angle sum property of a triangle, ठीक है ना? तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रायंगल के बेसिस पर सपोज मान लो ये 50 डिग्री है, ये 70 डिग्री है, तो यहां पर ये भी 50 डिग्री होना है और ये भी 70 डिग्री होना है, ठीक है ना? तो अगर ये दोनों आपस में इक्वल है तो जो थर्ड एंगल होगी दैट शुड बी आल्सो इक्वल। सो व्हाट इज गोइंग टू बी दैट? So 70 plus 50, so that is going to be 120, and 120 minus 180, so that is going to be 60. So obviously this two angles are going to be 60 degree, तो यहाँ पर ये दोनों 60 डिग्री के होंगे। तो अब हम इसको कैसे इक्वल कर सकते हैं या किस तरह से हम यहाँ पर इक्वल फिगर्स के लिए ला सकते हैं? तो डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, हम यहाँ पर फिगर्स को पुटअप करेंगे और फिगर्स के पुटअप होने के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरह से यहाँ पर हो सकता है। ओके, आई एम नॉट टेकिंग दिस वन एज इक्वल, आई एम टेकिंग दिस साइड इज इक्वल टू दिस वन, सो दैट वुड बी मच इजी टू डू इट। सो यहाँ पर AB इक्वल्स टू PQ। सो एज आई एम टेकिंग एन हाइपोथेटिकल कंडीशन, हम एक हाइपोथेटिकल कंडीशन लेकर समझा रहे हैं, इसीलिए इस चीज को हम कर रहे हैं। सो यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं, ये थर्ड एंगल मेरे पास नहीं दिया हुआ था, ये थर्ड एंगल मेरे पास नहीं दिया हुआ था, मेरा एंगल यहां पर दिया हुआ था, साइड और एंगल के अलग से दिया हुआ था, तो फिर भी हम इसको इक्वल कर रहे हैं, क्यों? बिकॉज ऑफ द एंगल सम प्रॉपर्टी। So over here these two angles are lying between this side, so it is going to satisfy the third condition, ASA means angle side angle, ये भी एक कंडीशन है। तो अभी हम फिर बता रहे हैं, हम फिर प्रोसेस पे आएंगे, हम फिर से प्रोसेस में आएंगे और फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस किस तरह के से हम लोगों को लिखना है, कैसे कैसे इसको रिप्रेजेंट करना है। तो अभी सिर्फ हम इंट्रोडक्शन बता रहे हैं, फिर इसके आगे हम लोग देखेंगे। तो नाउ वी विल गो फॉर द फोर्थ वन, दैट इज RHS, सो राइट हाइपोटेन्यूस साइड। सो राइट हाइपोटेन्यूस साइड जब हम ये टर्म इस्तेमाल कर दिए, इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट राइट ट्रायंगल, हम लोग राइट ट्रायंगल के बारे में बात कर रहे हैं। सो अंडर द कंडीशन ऑफ अ राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल के लिए एक 90 डिग्री तो होना ही होना है, एक एंगल 90 डिग्री होगा ही होगा, सो बोथ द ट्रायंगल्स विल हैव दिस थिंग एज कॉमन। नाउ if the triangles are having 90 degree, then they are right angle triangle. Now else than that, if the hypotenuse and any one side is equal, then the other side will also will be equal. अगर मान लो मेरे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें कि हमको बोला गया है कि दो साइड इक्वल है, कौन दो साइड इक्वल है? जो दोनों ट्रायंगल्स के हाइपोटेनस है वो दोनों आपस में इक्वल है, और बाकी जो एक साइड है वही एक साइड, कोई भी एक साइड, दैट कैन बी एनी वन, सो आइदर दिस वन और दिस वन, सो इट इज इक्वल्स टू दिस वन और दिस वन, तो कोई भी दूसरे साइड से वो इक्वल है। सो देयर वाज अ पाइथागोरस रूल, अगर सबको याद होगा कि हाइपोटेनस इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। So if in two different figures, I do have the hypotenuses are equal, and in that one either the perpendicular or the base are equal, under that case whether the third one will be equal or not, अगर मान लो इसमें मेरा हाइपोटेनस के साथ साथ परपेंडिकुलर भी इक्वल है, सपोज मान लो हाइपोटेनस तो इक्वल है ही है और परपेंडिकुलर भी इक्वल है, then obviously the third side means the base will be equal, ये होना ही होना है, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि वो चेंज हो जाएगा। सो इस कंडीशन के बेसिस पर हम लोग देखते हैं एक तरह से थर्ड साइड इक्वल हो गया, लेकिन इस जगह पर हम लोग SSS नहीं कहेंगे, हम उसको RHS कहेंगे, बिकॉज इट यूज्ड टू बी डन ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द राइट एंगल,
and because of that only we are doing this. अब चलो देखते हैं इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो अगर मेरे पास दो ट्रायंगल्स का सेट दिया हुआ है, मान लो मेरे पास दो ट्रायंगल्स का सेट है, इधर से एक ट्रायंगल है, जस्ट अ मिनट, ओके, और एक दूसरा ट्रायंगल यहां से। Now I have to name it also. So say this is A, this is B, this is C, this is P, this is Q and this is R. तो हमको क्वेश्चन में ये गिवन दिया हुआ है कि दिस AB is equals to this PR, this AC is equals to this QR and angle A is equals to angle R. ठीक है, ये हमको गिवन दिया हुआ है। तो जब हमको ये गिवन दिया हुआ रहेगा, the very first thing which you have to think about that which two triangles are going to be similar. Now which two triangles means here we have only two triangles. So do we say that ABC is congruent to PQR? नो, देखो हम ये नहीं कहेंगे कि सीधे सीधे ABC जो है वो PQR के इक्वल है। अगर हम ऐसा कहते, अगर मान लो हम ये कहेंगे कि ABC PQR के इक्वल है, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि यहां पर ये ABC को हम फिट नहीं बैठा सकते हैं इसके ऊपर। Why it is so? It is because the sides are not matching. यहां पे साइड्स जो है वो मैच नहीं कर रही हैं। बट इफ यू फ्लिप द फिगर, अगर तुम इसको थोड़ा सा फ्लिप कर दो, ठीक है, और तब करके अगर हम लोग उसको देखते हैं तो वो किस तरह से बन सकता है। तो ये इसको क्या करो, तुम लोग क्लॉकवाइज टर्न करो। फिगर को अगर क्लॉकवाइज टर्न करते हैं, सो हाउ द फिगर इज गोइंग टू फॉर्म, लेट्स हैव अ लुक ओवर दैट। So the figure is going to form like this. यहां पर आकर ये फिगर बनने वाली है, where you will observe that angle A is going to here, which is equals to angle R, which is already given. B यहां पर होगा, C यहां पर होगा. So this AB is equals to PR, so now it is equal, and this AC was equals to BC, now it is equal. देखो ये चीज तुमको बनाना नहीं है, ये तुमको सोचना है, ये तुमको इमेजिन करना है। हम इसीलिए बताए थे, यू हैव टू थिंक, तुमको वहां पे सोचना है। सोच कर तुम वहां पर आइडेंटिफाई करो कि हम फिगर को टिल्ट करें, फिगर को टर्न करें, फिगर को फ्लिप करें, फिगर को रोटेट करें, क्या करने से मेरा ये फिगर इस फिगर के ऊपर अलाइन हो जाए। दैट इज द थिंग विच यू हैव टू थिंक ओवर। सो if I am writing over here as by triangle, say as I am saying ABC, अगर हम ABC लेते हैं, then and triangle, तो हम यहां पर क्या नाम लिखेंगे? PQR लिखेंगे? No, it is not going to be. Why it is not going to be? Because I have to write it here, the arrangement of the sides according to the angles which are going to form over here. So where A is going to fall, where B is going to fall, where C is going to fall, according to that the name is going to be. So we know this thing that A is going to be on R, so R will be here. B is going to be on P, so here P will be there, and C is going to be on this Q, so over here. So what would be the triangle's name over here? QPR. Or suppose you had started with the triangle PQR. Suppose you had started from PQR. Then what is going to be the name over here? अगर मान लो कि तुम PQR से अपने ट्रायंगल्स का नाम स्टार्ट किए थे, ये ट्रायंगल पहले था और ये ट्रायंगल बाद में था, तब तुम यहां पर PQR से स्टार्ट करोगे, तो फिर यहां पर ABC का क्या पैटर्न होना है वो वहां पर हम लोग क्या देंगे? सो अगेन where P is going to lie, where Q is going to lie, and where R is going to lie. So where P is going to lie, अगर हम P के लिए देखते हैं तो P कहां पर lie करेगा? So that is going to be lie on B. Where the Q is going to lie, so the Q is going to lie on C, and where the C is going to be there or R is going to be there,
So R is going to be on A. So it is going to be BCA. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से जो ट्रायंगल का नाम है उसको बड़े ध्यान से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। जब तक हम उसको आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। अब जैसे कि यहाँ पर हमको प्रॉपर्टीज दी हुई हैं, जैसे हमको यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज दी हुई हैं वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज दी हुई हैं? It is going to be as we will write over here, AB is equals to PR. So here give reason given. The second one is going to be as the angle. So side, angle side, ये भी हमको पहले ही सोच लेना है, उसके बेसिस पर जाएंगे। So angle BAC is equals to angle PRQ. And the third condition is going to be as AC is equals to QR. So again, it is also given here. It is also given. So under this situation, we will say triangle ABC is congruent. This is the sign of congruent. Congruent to triangle RPQ. And when these two triangles had got congruent, then the other two angles, means this B and C, had already got equal. ये जैसे ही इक्वल हुआ तो बाकी जो है वो भी इक्वल हो गए और जो साइड है वो भी आपस में इक्वल हो गया. So this is the thing which we need to remember. Okay. So I hope that you all had understood this. Today's class is going to end up. You all just go through this topic. Wherever you are having any confusion, wherever you get any kind of doubt, we will discuss it in our next class. And once again, if it will be required, then I will explain it. And along this, we will also go for physics and chemistry also. So as your all exams had got over, so we can now start for the chapters. So but before that, you all just go for this concurrency, because this is very, very important and it is going to be important in your next classes also. So you